Hello students, our new topic is non-homogeneous linear ordinary differential equation of higher order and constant coefficient. Okay, so here non-homogeneous. In previous two video lecture, we studied about homogeneous, but here non-homogeneous equation. So what is the form of non-homogeneous equation? An ordinary differential equation of the form a0 d raised to n y dx raised to n plus a1 d raised to n minus y dx raised to n minus 1 plus a2 d raised to n minus 2 dx raised to n minus 2y plus a and y is equal to qx. So in homogeneous form, here instead of qx, your RHS is 0 in homogeneous form. But in non-homogeneous form, here in RHS, your part is qx. So where, as you know, a0, a1, a2, an are constant and q is a function of x and is known as a non-homogeneous linear ordinary differential equation with constant coefficients. Okay. Equation 1 can also be written as a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 a2 d raised to n minus 2 plus an into y is equal to qx. How come? So we know that d by dx is equal to capital D. Instead of d by ds, we write capital D. So here a0 capital D raised to your power is n, so n. In second term n minus 1, so n minus 1, n minus 2, n is equal to qx. So where f of t is equal to a0 d raised to n plus a1 d raised to n minus 1 plus a2 d raised to n minus 2 up to an. Okay, so this is the form of your non-homogeneous linear differential equation. Now, general solution of a non-homogeneous linear ordinary differential equation. How to obtain general solution for non-homogeneous equation? So, general solution of equation 1 is obtained in two parts. Okay, two parts, that is CF plus PI. What is CF? Complementary function plus particular integral. So for non-homogeneous differential equation, you have to obtain general solution. So general solution, you have two terms. आपको दो terms find करनी है. First one is complementary function and particular integral. So short form CF plus PI, that is Y, general solution. This is the formula. So the complementary function, that is CF, is the general solution of the homogeneous equation obtained by putting qx is equal to 0 in equation number 1. So हम already homogeneous equation के लिए general solution find करते थे. कैसे find करते थे? आप अपना equation जो था वो d के फॉर्म में लिखते थे, फिर d को m रिप्लेस करते थे और auxiliary, that is your auxiliary equation, और auxiliary equation पे से हम क्या फाइंड करते थे? इक्वल टू 0 लेके m की टर्म्स फाइंड करते थे और जो हमें m की वैल्यू मिलती थी उसके लिए हमारे पास 3 केसेस थे. रियल, रूट्स आर रियल, रिपीटेड एंड कॉम्प्लेक्स. ओके, उसके बेस पे हम जनरल सॉल्यूशन लिखते थे. तो जो आपका CF पार्ट रहेगा वो हम जो होमोजेनियस के लिए फाइंड करते थे उससे फाइंड करना है. नाउ व्हाट अबाउट PI? दिस इज द न्यू वन. PI कैसे फाइंड करना है? So the particular integral PI is any particular solution of the non-homogeneous equation 1 and contain no arbitrary constant. ठीक है? So CF we already know, but what about PI? So for PI, here there are different cases. So for particular integral, inverse operator. So f of d is known as the differential operator and 1 upon fd is known as the inverse differential operator, that is qx, which is RHS of our non-homogeneous equation. So fd, that is function of d, differential operator, and 1 upon d inverse. तो fd और यहाँ पे 1 upon fd. ठीक है. So what is pi? So pi is equal to 1 upon ft into qx. How we obtain pi? That is 1 upon ft into qx. और fd क्या है? What is fd? जो हमारा इक्वेशन है t²
प्लस 2d प्लस 1 ये टाइप का रहता है हमारा इक्वेशन, वो मतलब d वाला फॉर्म. सो हियर इफ f of d is equal to d, then what is your pi? 1 upon d into qx, that is integration qx dx. So if your pi is in the form of 1 upon d, ठीक है, this d is in denominator with qx, then इंटीग्रेशन qx dx, मतलब आपका फॉर्म डिनोमिनेटर में d है आपके साथ, तो आपको इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, याद रखना. सो सेकेंड वन, इफ f of t is equal to d minus a, here only d, a part is 0, but if your fd is in the form of d minus a, then the equation f of d into y is equal to qx. So that become d minus a into y is equal to qx is a first order linear differential equation. So what is our integrating factor? हमें सबको पता है linear differential equation के लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करते थे. वो क्या था हमारा, e raised to minus p dx. इंस्टेड ऑफ p यहाँ पे क्या है, माइनस a. So e raised to minus ax, because integration of this a is constant, so outside, and dx, so integration of 1 dx is x. Okay, now the solution of this one is y e raised to ax integration qx e raised to minus ax dx c e raised to ax. क्योंकि हम क्या करते थे फॉर लिनियर के लिए, इंटीग्रेट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते थे विथ योर इक्वेशन. सो व्हाट इज योर पी आई? यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, 1 upon d minus a into qx. Remember pi is equal to 1 upon d minus a into qx. कब यूज करना है, इफ ऑफ एफ डी इज इक्वल टू डी माइनस ए. अगर आपकी टर्म एफ डी की डी माइनस ए फॉर्म में है तो 1 upon d है qx, विच इज इक्वल टू e raised to ax integration qx e raised to minus x dx. Okay, now next one, direct method of obtaining particular integrals. So for homogeneous equation हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कैसे था, हमारे पास according to root, for different root we are having different general solution. So same for particular integral, मतलब pi, उसके लिए भी different cases रहेंगे. So this method depends on the nature of qx in equation number 1. That is हमारा जो इक्वेशन है, क्या था हमारा इक्वेशन, f of d to y is equal to qx. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये pi किस पे डिपेंड होगा, qx पे डिपेंड होगा. सो द पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय दिस मेथड कैन बी ऑब्टेन व्हेन qx इज द फॉलोइंग टर्म्स. तो qx की जो डिफरेंट टर्म्स होगी उस पे जनरल सॉल्यूशन डिफरेंट होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टर्म, इफ qx इज इक्वल टू e रेज टू ax प्लस b, इट मीन्स आपका qx का फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. सेकेंड, साइन और कॉस फॉर्म. थर्ड, x रेज टू m और पोलिनोमियल इन x. देन e रेज टू ax इंटू vx और x इंटू vx. दैट इज 1 2 3 4 5. पी फाइंड करने के लिए टोटल हमारे पास कितने केसेस होंगे, 5 केसेस होंगे. तो हम 1 by 1 ये जो सारे केसेस है फॉर पी के लिए उसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, नाउ केस नंबर 1, योर qx इज इन द फॉर्म ऑफ e रेज टू ax प्लस b. ठीक है, सो व्हेन योर qx इज इन द फॉर्म ऑफ e रेज टू ax प्लस b, व्हाट इज योर पी आई? सो योर पी आई क्या लिखना है हमें, 1 upon f of a e raised to ax plus b if f of a not equal to 0. So if your f of a is equal to 0, then d minus a is a factor of f of d, and hence the above rule fail. So if your qx is equal to e raised to ax plus b, तो व्हाट इज योर पी आई? यहाँ पे हमें डायरेक्ट पी आई लिखना है, 1 upon f of a. नाउ व्हाट इज f of a? यहाँ पे आप दे सकते हो e रेज टू ax प्लस b, x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, a. ठीक है, तो डायरेक्टली पी आई में आपको जो फंक्शन रहेगा आपका वहाँ पे a की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देनी है. ठीक है, जैसे अगर मेरे पास आपका यहाँ पे है, अगर यहाँ पे ऐसा हुआ डी स्क्वायर
प्लस 2d और e रेज टू 2x. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर केस नंबर 1. व्हाट इज योर पी आई? 1 अपॉन एफ ऑफ ए e रेज टू ax प्लस b. ठीक है, सो व्हाट इज योर दिस वन 2. ax कंपेयर करो, b इज 0 बट व्हाट इज अबाउट a 2. तो मुझे क्या करना है, ये जो d रहेगा उसके अंदर डायरेक्टली a की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है. ठीक है, तो ये क्या होगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 एंड यहाँ पे जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा. दैट इज क्या मिलेगा 1 अपॉन 8 ई रेज टू 2x. दैट इज हियर योर एफ ऑफ ए. व्हाट इज योर एफ ऑफ ए 8 4 प्लस 4. सो जब भी आपके पास ई रेज टू एक्स प्लस बी वाली टर्म है, आपको ए की वैल्यू डी के अंदर पुट कर देनी है, विच इज योर फाइनल आंसर ऑफ पी आई. बट इन केस व्हाट इज नोट, अगर आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, यहाँ पे अगर वैल्यू 1 जो 8 आई उसकी अगर 0 मिलेगी वैल्यू, तो आपको क्या करना है, ये रूल फेल हो जाएगा. तो आपको पी आई दूसरी मेथड से करनी है. कैसे करना है, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी माइनस ए फाई डी where phi of a not equal to 0. So what is your pi? 1 upon fd e raised to ax plus b. 1 upon d minus a into phi d. सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, हमें क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे फैक्टर होगा इंटू फाई डी ई रेज टू एक्स प्लस बी, देन ए की वैल्यू रिप्लेस करनी है यहाँ पे डी के अंदर. सो 1 अपॉन फाई ए एंड 1 अपॉन डी माइनस ए ई रेज टू एक्स प्लस बी. सो 1 अपॉन फाई ए और जो आगे हमने दिखा था इसका इंटीग्रेशन करना है. जैसा मैंने आपको बताया 1 अपॉन डी माइनस ए फॉर्म है, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर है, तो आपको इंटीग्रेशन लेना है. ठीक है, और ई रेज टू एक्स क्या है आपका यहाँ से. सो फाइनली दिस इज योर पी आई. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. एक्स 1 अपॉन फाई ए ई रेज टू एक्स प्लस बी. ये कैसे आया, वो ऑब्टेनिंग मेथड है. आपको खाली ये फॉर्मूला याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे टर्म 0 हो रही है तो व्हाट इज योर पी आई, एक्स 1 अपॉन फाई ए ई रेज टू ए एक्स प्लस बी. ओके, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस केस. राइट डाउन एग्जाम्पल. सॉल्व d square 5d plus 6 into y is equal to e raised to x. ठीक है, योर एग्जाम्पल सॉल्व d square plus 5d plus 6 into y is equal to e raised to x. सो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, यहाँ पे LHS एंड RHS. RHS में आपका फॉर्म क्या है, e रेज टू एक्स, दैट इज नॉन होमोजीनियस. अगर होमोजीनियस होता तो यहाँ पे क्या होता, 0 होता. ठीक है, तो व्हाट अबाउट सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन क्या है नॉन होमोजीनियस के लिए, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. आपको 2 टर्म फाइंड करनी है, सी एफ और पी आई. तो पहले हम सी एफ फाइंड करेंगे. तो सी एफ के लिए मैंने क्या बोला आपको जैसे हम होमोजीनियस के लिए फाइंड करते थे वैसे ही करना है, क्यू एक्स को 0 लेके. तो हम क्या करते थे, हमारा क्या रहे, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू, हमें क्या लेना है 0. ठीक है, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0. एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अभी हम क्या करते थे, m की वैल्यू के लिए फैक्टराइजेशन. तो यहाँ पे 3 2 6, तो 2 फैक्टर्स क्या होंगे, m प्लस 2 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 एंड m इज इक्वल टू -3. सो व्हाट आर द रूट्स, विच टाइप, रियल एंड कोई भी रूट रिपीट नहीं हो रहा है, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, हो गया. सो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस, हमें इसको लिखना है सी एफ, याद रखना. तो सी एफ क्या होगा, C1 ई रेज टू -2x प्लस C2 ई रेज टू -3x. हो गया. नाउ हमने सी एफ फाइंड कर लिया. नाउ व्हाट अबाउट पी आई. सो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, 1 अपॉन एफ डी
into e raised to x. This is your e raised to x. So what is 1 upon fd? जो हमारी d के पास टर्म है वो. So 1 upon d square plus 5d plus 6 into e raised to x. Now अभी आपको क्या चेक करना है? x के साथ मल्टीप्लाई क्या है? a according to our case. So multiplying by constant which is 1. यहाँ पे क्या है? 1. तो यहाँ पे अगर मैं d की जगह पे मुझे क्या रिप्लेस कर देना है? a. तो क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 एंड ये तो यहाँ पे सेम रहेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस 5 प्लस 6. तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12. सो आपने देखा यहाँ पे वैल्यू हमें 12 मिली विच इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, वैल्यू अगर 0 नहीं होती है तो हमें यही आपका फाइनल पी आई है. सो योर पी आई. सो लास्ट में जनरल सॉल्यूशन इज y is equal to CF plus PI. What is our CF? This one. C1 e raised to minus 2x plus C2 e raised to minus 3x. हो गया? Plus PI. What is our PI? 1 upon 12 e raised to x. So this is our final answer. So मेथड समझ में आ गई आपको? क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम होमोजीनियस के लिए फाइंड करते थे वैसे करना है और उसके बाद पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सॉल्व 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. नाउ अगर आप एग्जांपल ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या है आपके पास? हमें क्यू की टर्म देखनी है बट यहाँ पे आपने देखा तो क्यू क्या है? 4 है. यहाँ पे तो कोई ई रेज टू एक्स वाली टर्म नहीं है. सो ऐसे में क्या करेंगे? हम सिंपल क्या करना है हमें? पहले तो होमोजीनियस इक्वेशन कंसिडर करना है. सो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ दिस इज 2m माइनस 1 होल स्क्वायर होगा ये इज इक्वल टू 0. सो आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टर मिलेंगे. 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2 एंड 1/2. सो आप देख सकते हो 1/2 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम. मतलब रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड. रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड. तो हमारा सी एफ क्या था तब? जब भी C1 प्लस C2x ई रेज टू 1/2 x मिल गया. दिस इज अवर सी एफ. ठीक है, नाउ पी आई. वॉट अबाउट पी आई? मैंने पहले आपको पूछा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है? ई रेज टू एक्स वाली टर्म ही नहीं है तो हम कैसे पी आई फाइंड करेंगे? तो आपको पता है व्हाट इज ई रेज टू 0? 1. सो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे भी यही करना है. तो जब भी आपको ऐसे कांस्टेंट वैल्यू दी हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको क्या करना है? 4 ई रेज टू 0x बिकॉज ई रेज टू 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो जब भी ऐसा दिखे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको ये वाला टर्म ऐड कर देना है क्योंकि हमारे पास ई रेज टू 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो यहाँ पे मतलब क्या है? 4 इंटू 1 लिख सकते हैं ना हम. तो 1 की जगह पे मैं यहाँ पे ई रेज टू 0x ऐड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर कोएफिशिएंट? 4 ई रेज टू 0x मतलब a क्या है आपका? 0. तो इंस्टेड ऑफ d मैं क्या पुट करूंगी? 0. 4 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 1. d की जगह पे a की वैल्यू रिप्लेस करनी है, याद रखना. ठीक है, और ये 4 जो रहेगा वो आगे आ जाएगा. तो 4 इंटू 1 अपन क्या हो जाएगा? 0 0 1 एंड ई रेज टू 0x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई रेज टू 0x तो हमें पता है 1 है. तो आंसर 4. मतलब योर पी आई आंसर इज 4. व्हाट अबाउट जनरल सॉल्यूशन?
y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. So y इज इक्वल टू क्या होगा? व्हाट इज योर सी एफ? C1 प्लस C2x e raised to 1 by x. What is your pi? Plus 4. So that is our final answer. Okay? So समझ में आया क्या मेथड है आपकी पी के लिए? सिंपल, जो e raised to x ax का मतलब ए कोफिशिएंट है उसको डी की जगह पे रिप्लेस करो तो आपको पी आई मिलेगा, और सी एफ वो आप होमोजीनियस लेके आपको फाइंड आउट करना है.